Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all dear students. I am Muhammad Afzal Qureshi, lecturer in chemistry from Government Neoligal College, Tandwada. Today we discuss interchemistry, chapter number 9, oxygen containing organic compound. In previous lecture, we take introduction of oxygen containing organic compound and discuss nomenclature of alcohol. Today we also discuss nomenclature of other families of oxygen containing organic compound like phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid and ester. Today we discuss nomenclature of all these families, rules, method and taking examples. अब हम फर्स्ट फैमिली लेते हैं फिनोल. फिनोल आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच हो वो हमारे पास कहलाते हैं फिनोल्स. दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग, one OH group attached, here benzene ring with two OH group attached and here three OH group attached. On the basis of number of OH, if one OH group attached are called monohydric, two OH group attached dihydric and if three OH group attached are called trihydric. Some compounds of common name are given. For example, if two OH group attached but 8 adjacent carbon are 1-2 position, they are called catechol. If OH group attached with alternate carbons, for example 1 and 3, so they are called resorcinol. If OH group attached on opposite carbon, so they are called hydroquinone. बेंजीन फिनोल को हम नंबर ऑफ OH ग्रुप की बुनियाद पर अटैच डिवाइड करते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक. सेम वही जो हमने अल्कोहल में लिया था कि अगर फिनोल बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप अटैच हो तो वो कहलाते हैं मोनोहाइड्रिक, अगर 2 OH ग्रुप अटैच हो तो डाइहाइड्रिक और अगर 3 OH ग्रुप अटैच हो तो ट्राइहाइड्रिक. इसी तरह हमारे पास वो कुछ कॉमन नेम दिए गए फिनोल स्ट्रक्चर्स के कि फॉर एग्जाम्पल अगर 2 OH ग्रुप हो एडजेसेंट कार्बन पर या 1-2 पोजीशन तो ये हमारे पास कहलाते हैं केटिकोन. अगर 2 OH ग्रुप मौजूद हो अल्टरनेट कार्बन्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 1-3 तो ये कहलाते हैं रिसोर्सिनोन और अगर अपोजिट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच हो तो ये हमारे पास कहलाते हैं हाइड्रोक्विनोन. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ फिनोल कंटेन 1, 2 and 3 OH group, so they are called pyrogalone. Same, if phenol any carbon contain methyl group, they are called cresol. If adjacent carbon are 2,6 carbon, they are called orthocresol. Alternate carbon called metacresol and opposite carbon called paracresol. Because in benzene common 2,6 position called ortho. Two 6 position ortho represented by O, 3-5 position meta represented by N, 4 position para represented by P. So here methyl group present on second position, so commonly called orthocresol and IUPAC name is 2-methyl phenol because OH group containing carbon 1, 2, 3, 4, 5 and 6 position. In another structure, if 3 nitro group attach on 2, 4, 6 position, for example 1, 2, 3, 4, 5, 6 position, so IUPAC name is 2,4,6 trinitrophenol and commonly called picric acid. If two benzene rings are attached, they are called naphthalene, and if OH group attached, they are called naphthol. If on one position, they are called alpha naphthol.
if present on second position they called beta naphthol and IUPAC name is 1 naphthol and 2 naphthol. अगर हम फिनोल्स को स्टडी करते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ 3 OH ग्रुप अटैच हो 3 एडजेसेंट कार्बन पर, तो ये कॉमनली कहलाता है पायरोगेलोन। इसी तरह फिनोल के साथ अगर किसी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ जाए तो ये कॉमनली कहलाता है क्रेसोल। फिर पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर एडजेसेंट कार्बन या 2,6 पोजीशन पर हो तो ऑर्थो, 3,5 पर हो तो मेटा या अल्टरनेट पर हो मेटा, और 4 पर हो तो पेरा, क्योंकि 2,6 पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, 3,5 कहलाती है मेटा और 4 कहलाती है पेरा। इसी तरह अगर हम इसका यहाँ पर क्या है CH3 मौजूद है सेकंड पोजीशन पर, तो ये कहलाते हैं ऑर्थो क्रेसोल और IUPAC नेम होता है 2 मिथाइल फिनोल। इसी तरह अगर फिनोल के साथ 2, 4 एंड 6 पोजीशन पर 3 नाइट्रो ग्रुप हो तो इसे IUPAC नेम में कहा जाता है 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल और कॉमनली इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। अगर दो बेंजीन रिंग एक साथ अटैच हो तो ये हमारे पास कहलाती है नाफ्थलीन। इसी तरह अगर किसी कार्बन के साथ OH आ जाए तो ये कहलाते हैं नेफ्थोल। अगर 1 पोजीशन पर हो तो अल्फा नेफ्थोल, जिसे IUPAC नेम में 1 नेफ्थोल भी कहा जाता है। इसी तरह अगर सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच हो तो ये कहलाते हैं बीटा नेफ्थोल और इसे IUPAC नेम में 2 नेफ्थोल भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास नॉमेनक्लेचर होती है फिनोल्स की। नाउ द सेकंड फैमिली इज ईथर। Ether are those organic compound in which alkyl group attach with 2 alkyl group or both valencies or of oxygen satisfied by alkyl group. They are aliphatics. In aromatic, these valencies are also satisfied by aromatic part. General formula of aliphatic ethers are CnH2n plus 2 like alkanes and oxygen. If in ether both alkyl group are same, मतलब both valencies of oxygen satisfied by same alkyl group, they are called symmetrical or simple ether. If both valencies of oxygen satisfied by with different alkyl group, alkyl radical, so they are called unsymmetrical ether or mixed ether. Common names. In common names, first we give name of alkyl group and then name oxygen as a ether. For example, both sides are methyl groups, so they are called dimethyl, and oxygen for ether. Same here, methyl, ethyl, so ethyl, methyl, ether. In this structure, oxygen, one side secondary propyl or isopropyl, and other side is ethyl. So ethyl, secondary propyl, ether. It is also called isopropyl. So we also gave name ethyl isopropyl ether. In this structure, oxygen left side tertiary butyl group because carbon oxygen attached with tertiary carbon, so they called tertiary butyl, and on right side oxygen attached with secondary carbon, so they called secondary butyl and oxygen ether. So the name of this structure tertiary butyl, secondary butyl, ethers. ईथर के जब हम नेक्स्ट फैमिली ईथर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन के साथ दोनों जानिब अल्काइल ग्रुप अटैच हो। ये हमारे पास होते हैं एलिफेटिक। एरोमेटिक के अंदर ऑक्सीजन के दोनों जानिब जो है वो एरोमेटिक पार्ट होता है। यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एलिफेटिक ईथर्स को। जनरल फार्मूला इनका CnH2n+2 एंड ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। इसी तरह अगर ऑक्सीजन के दोनों जानिब सेम अल्काइल ग्रुप हो तो ये हमारे पास कहलाते हैं सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर, और अगर ऑक्सीजन के दोनों जानिब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो तो ये हमारे पास कहलाते हैं अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। कॉमन नेम्स लेते हैं तो कॉमन नेम्स में पहले हम अल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं और फिर ऑक्सीजन के लिए एज अ ईथर फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल CH3 so डायमिथाइल एंड ईथर। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के एक जानिब मिथाइल एक जानिब क्या है इथाइल, तो ये कहलाता है इथाइल मिथाइल ईथर। इस स्ट्रक्चर में आते तो ऑक्सीजन के एक जानिब जो वो क्या है
आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल, ये पार्ट हमारे पास आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल, और ये हमारे पास है इथाइल। तो इसका नेम क्या होगा, इथाइल सेकेंडरी प्रोपाइल ईथर या इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। लास्ट स्ट्रक्चर में आते हैं कॉमन नेम्स की। तो ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप अटैच है उसमें जो कार्बन है वो हमारे पास टर्शियरी कार्बन है। कल हमने इसे जो मतलब अपने लास्ट लेक्चर के अंदर इसे डिस्कस किया था। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगी टर्शियरी ब्यूटाइल, कार्बन टर्शियरी है, और 4 जो है वो कार्बन है ब्यूटाइल, तो टर्शियरी ब्यूटाइल। और ऑक्सीजन के सेकंड जानिब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें जो ऑक्सीजन अटैच है वो है सेकेंडरी कार्बन से, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी, और 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर। तो ये हमारे पास कॉमन नेम्स होते हैं ईथर्स के। नाउ द आयोपेक नेम्स ऑफ ईथर्स। इन ईथर्स आयोपेक नेम, oxygen both sides are alkyl group. One alkyl group attached with oxygen, so name give alkoxy, and second alkyl group as a parent alkane is called alkane, so name is alkoxy alkane. OCH3 group called methoxy, OC2H5 group called ethoxy. If oxygen both sides same alkyl group, one alkyl group attached with oxygen and other as a alkane. For example, CH3, so this alkyl group attached with oxygen methoxy and this is methane. If different alkyl group attach, then lower number carbon attached with oxygen and give name as a alkoxy, and the higher number alkyl group as a alkane. For example, here methyl, ethyl, so methyl attached with oxygen give name methoxy, and C2H5 as a parent chain is called ethane, so name is methoxy ethane. आयोपिक नेम जब हम लेते हैं ईथर्स के, तो ऑक्सीजन के दोनों जानिब अल्काइल ग्रुप हैं। अब इनके लिए हम एक अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ अटैच करेंगे और उसे नाम देंगे एज अ अल्कोक्सी, और सेकेंड हमारे पास जो है वो एज अ पेरेंट जो हमारे पास कहलाएगा अल्केन। तो इनका आयोपिक नेम होगा अल्कोक्सी अल्केन। ओ के साथ अगर मिथाइल ग्रुप हो तो ये कहलाता है मिथोक्सी, अगर ओ के साथ इथाइल ग्रुप हो तो इथोक्सी। इसी तरह अदर जो है वो हमारे पास अल्कोक्सी ग्रुप होंगे। अगर ऑक्सीजन के साथ सेम अल्काइल ग्रुप हो तो किसी भी एक अल्काइल ग्रुप को हम ऑक्सीजन के साथ अटैच करेंगे और उसे नाम देंगे एज अल्कोक्सी, और सेकंड को हम नाम देंगे एज अ अल्केन। फॉर एग्जांपल, इस स्ट्रक्चर में दोनों जानिब मिथाइल ग्रुप है तो एक हो जाएगा मिथोक्सी और सेकंड हमारे पास होगा मिथेन। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो जो लोअर नंबर ऑफ कार्बन होगा उसे हम ऑक्सीजन के साथ अटैच करेंगे और नाम देंगे एज अल्कोक्सी, और जो हायर नंबर कार्बन है उसे हम नाम देंगे एज अ अल्केन। मिथाइल इथाइल, मिथाइल को ऑक्सीजन के साथ क्योंकि कम नंबर कार्बन है तो मिथोक्सी, और C2H5 हमारे पास पेरेंट अल्केन, ये हमारे पास होगा इथेन। इसी तरह ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है। पहले हम एक चेन सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन की, फिर हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे जहां से हमारे पास अल्कोक्सी ग्रुप करीब होगा। 1 2 3 4। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है कि सेकंड पोजीशन पर मिथोक्सी ग्रुप है और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल। अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे तो हमारे पास एम जो है वो दोनों में सेम है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल, और हमने जो चेन सिलेक्ट की है 4 कार्बन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर के अंदर नेम देंगे। एक और एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर पहले हम क्या करेंगे, एक चेन सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास चेन है। नंबरिंग करते हैं तो दोनों जानिब से अल्कोक्सी ग्रुप सेम पोजीशन पर आ रहा है, 1 2 3। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर मिथोक्सी एंड मिथाइल। तो ये हमारे पास नेम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथोक्सी प्रोपेन।
हमने यहाँ पर मिथोऑक्सी किया या मिथाइल किया या मिथाइल किया मिथोऑक्सी, हम अल्फाबेटिक ऑर्डर के तहत फर्स्ट जो है वो एम को नाम मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। दोनों स्ट्रक्चर के अंदर एम जो है वो सेम है, तो हमारे पास हम मिथाइल को भी नाम दे सकते हैं और मिथोऑक्सी को भी। तो ये 2 मिथाइल 2 मिथोऑक्सी, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर मिथोऑक्सी था, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, और हमने जो चेन सेलेक्ट की वो 3 कार्बन की थी, तो अल्केन हो गया प्रोपेन। उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर में आते, तो अब यहां पर क्या है, नंबर फर्स्ट चेन सिलेक्शन करते हैं। चेन सिलेक्शन करते तो 1 2 लेफ्ट साइड से सेकंड कार्बन पर एक अल्कोक्सी ग्रुप है और ब्रांच है, जबकि राइट साइड से सेकंड पोजीशन पर एक ब्रांच है अल्काइल की, तो हम प्रायोरिटी देंगे अल्कोक्सी ग्रुप को। अब यहां हमारे पास क्या है कि सेकंड पर मिथोऑक्सी मिथाइल है, थर्ड पर इथोऑक्सी और फोर्थ पर मिथाइल है, मतलब 2 ब्रांचेज है मिथाइल की, एक है मिथोऑक्सी की और एक है इथोऑक्सी की। तो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर के तहत पहले नाम देंगे इथोऑक्सी, फिर हमारे पास जो है वो ये नेम हो जाएगा 3 इथोऑक्सी, 2 4 डाइमिथाइल, 2 एंड 4 पोजीशन पर डाइमिथाइल, 2 पोजीशन पर मिथोऑक्सी, और जो हमने चेन सिलेक्ट की वो हमारे पास 5 कार्बन की, तो ये हमारे पास हो जाएगा पेंटेन। तो इस तरीके से हम आयोपिक नेम्स देते हैं ईथर को, कि एक अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ एज अल्कोऑक्सी, और सेकंड जो हम चेन सिलेक्ट करते हैं वो हमारे पास एज अल्केन, तो ये हमारे पास नेम होते हैं एज अल्कोऑक्सी अल्केन। नाउ द नेक्स्ट फैमिली इज aldehyde. Aldehyde are those organic compounds in which carbonyl group attach with hydrogen and alkyl group, means 2 valencies, 1 valency attach with hydrogen and other with alkyl group. So this group is called aldehyde functional group, and short form is CHO group is also aldehyde. General formula is CnH2n. अल्डिहाइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है किसके साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक जानिब होगा अल्काइल ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये हमारे पास कहलाता है अल्डिहाइड ग्रुप, जिसे हम CHO से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो और साथ में अल्काइल ग्रुप, तो ये हमारे पास कहलाते हैं अल्डिहाइड। जनरल फार्मूला होता है CnH2n ऑक्सीजन। इसके बाद फिर हमारे पास जब हम इनके कॉमन नेम्स लेते हैं, इन्हें कॉमन नेम दिए जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि अल्डिहाइड की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो जिस कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है अल्डिहाइड, उसी के तहत उसे नाम दिया जाता है कॉमनली, जैसे HCOOH कहलाता है फार्मिक एसिड, और ये फॉर्म होता है ऑक्सीडेशन ऑफ SCHO से, तो इसे कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बनता है, तो CH3CHO को हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। इसी तरह CH3CH2CHO प्रोपाइलल्डिहाइड और CH3CH2CH2CHO ब्यूटाइल अल्डिहाइड। तो इस तरह से हम अल्डिहाइड को कॉमन नेम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब इनमें हम क्या करते हैं, नंबरिंग जो है वो कॉमन नेम्स के अंदर नंबरिंग की जाती है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है वो हमेशा अल्फा कार्बन होता है, तो हम इन्हें जो है वो ग्रीक लेटर के तहत नंबरिंग करते हैं, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर पहले जो है वो हमारे पास जो ब्रांचेस होंगी उन्हें हम नाम देंगे, और फिर उसके बाद जो है वो जो भी हमने जितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन है अल्डिहाइड की, उसे जो है वो कॉमन नेम दिया जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, नंबर फर्स्ट होगा अल्फा अमाइनो, बीटा मिथाइल, और ये हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन का अल्डिहाइड है, और वो हमारे पास कहलाता है ब्यूटाइल अल्डिहाइड। तो ये नेम हो जाएगा
ब्यूटाइल अल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम इन्हें नेम देंगे। इसी तरह ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, सेम जिस तरह हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर नंबरिंग की, इसी तरीके से नंबरिंग करेंगे, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर क्या है, बीटा पर ब्रोमो है, मिथाइल है, और अल्फा पर क्या है, इथाइल। तो हम नेम देंगे बीटा ब्रोमो, अल्फा इथाइल, बीटा मिथाइल, एंड ब्यूटाइल अल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो इस स्ट्रक्चर का नेम होगा। तो हम अल्डिहाइड को नेम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बुनियाद पर, और यहाँ पर जो हमारे पास नंबरिंग होती है वो ग्रीक लेटर अल्फा बीटा एंड गामा से दी जाती है। नाउ द आयोपिक नेम्स ऑफ aldehydes. In aldehyde ayopic names, we remove alkane E and add suffix al, so they called alkanal. Alkane E remove and in the end al add, so they called alkanal. For example, SCHO called methanol, CH3CHO called ethanol. आयोपिक नेम जब हम देते हैं अल्डिहाइड्स के, तो अल्केन के ई को रिप्लेस करते हैं, ई की जगह पर एल ऐड करते हो, ये हमारे पास कहलाता है अल्केनल। मतलब जो भी हमारे पास पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे उसे हम नाम देंगे एज अ अल्केनल। फॉर एग्जाम्पल SCHO ये हमारे पास कहलाता है मिथेनल, CH3CHO ये हमारे पास कहलाता है इथेनल। इसी तरह जब हम कंपाउंड लेते हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा, पहले चेन सिलेक्ट करेंगे। चेन सिलेक्शन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे SCHO ग्रुप से, क्योंकि वो कार्बन कंटेन करता है। नंबरिंग भी हमेशा अल्डिहाइड ग्रुप से होगी, क्योंकि वो कार्बन कंटेनिंग है, और नंबर प्रायोरिटी जो है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप के पास 1 2 3 4। अब यहाँ पर दो ब्रांचेस मौजूद हैं, 2 के ऊपर मौजूद है NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप, और थर्ड पर जो है वो हमारे पास मिथाइल। तो हम इसे नाम देंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर के तहत 2 अमाइनो, 3 मिथाइल, और 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, ये हमारे पास 4 कार्बन अल्केन ब्यूटेन, यहाँ पर कहलाएगा ब्यूटेनल। हम यहाँ पर अल्डिहाइड की पोजीशन को रिप्रेजेंट मतलब शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। इसी तरह ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास 2 अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, एक से स्टार्ट करेंगे और सेकंड पर एंड करेंगे। ये हमारे पास चेन सिलेक्शन। नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ से 1 2 मतलब सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ से 1 2 पर कोई ब्रांच मौजूद नहीं है। तो हम ब्रांच की बुनियाद पर प्रायोरिटी देंगे लेफ्ट साइड को। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया, नंबरिंग हो गई। अब सेकंड पोजीशन पर हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो हम नेम देंगे 2 मिथाइल। इसी तरह अब 2 अल्डिहाइड ग्रुप है, 4 कार्बन, तो ये हमारे पास कहलाएगा ब्यूटेन डायल। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, और डायल मतलब 2 जो है वो CHO ग्रुप मौजूद है फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पर। यहां भी हम नंबरिंग शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा अल्डिहाइड जो है वो स्टार्ट एंड लास्ट के अंदर होगा। अब हमारे पास ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें पहले हमने स्ट्रक्चर को ओपन किया, कार्बन के साथ 3 जो है वो मिथाइल ग्रुप है, फिर उसके बाद CH के साथ OH ग्रुप, और लास्ट में जो है वो CHO ग्रुप। नंबर फर्स्ट चेन सिलेक्शन करेंगे अल्डिहाइड से कार्बन की, नंबरिंग करेंगे हमेशा अल्डिहाइड से 1 2 3 4। अब हमारे पास जो सेकंड
पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है जो हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप कहलाता है, और 3 के ऊपर 2 मिथाइल्स है। तो हम नाम देंगे 2 हाइड्रोक्सी, 3 डाइमिथाइल एंड चेन सिलेक्शन जो है वो ब्यूटेन है। तो इस तरीके से हम तमाम के तमाम अल्डिहाइड्स को जो है वो नेम देते हैं, एक चेन सिलेक्शन करते हैं जिसके अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, पहले ब्रांचेस को नाम देते हैं और आखिर के अंदर अल्डिहाइड कंटेनिंग जो हमने चेन सिलेक्शन की है उसे हम नाम देते हैं एज अ अल्केनल। नाउ द कीटोन्स। Ketone are those organic compounds in which carbonyl group attach with 2 alkyl group. So they are called ketones. General formula is CnH2nO, like aldehydes. Ketone or aldehydes both are isomers, functional group isomers. If ketone carbonyl group attach with same alkyl group, so they are called symmetrical or simple ketone. If different alkyl group attach are called unsymmetrical or mixed ketones. In common name, first we give alkyl name as the like ether and CO name as ketone. For example, both side methyl groups, so they are called dimethyl, and ketone methyl ethyl, so they call ethyl methyl ketone. अगली फैमिली हम कीटोन है। कीटोन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, तो ये हमारे पास कहलाते हैं कीटोन्स। जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ सेम अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो ये कहलाते हैं सिमेट्रिकल और सिंपल कीटोन, और अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो ये कहलाते हैं अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड कीटोन। कॉमन नेम्स के अंदर पहले हम अल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं ईथर की तरह, और CO को नाम देते हैं कीटोन। तो ये हमारे पास जो है वो डाइमिथाइल, बोथ साइड मिथाइल है तो डाइमिथाइल, और CO कीटोन। इसी तरह इस स्ट्रक्चर में एक जानिब मिथाइल और सेकंड जानिब इथाइल, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इस तरीके से पहले हम अल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं और फिर CO को नाम देते हैं एज अ कीटोन। अब हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ये CO, एक अल्काइल ग्रुप ये मौजूद है और एक अल्काइल ग्रुप ये मौजूद है। ये अल्काइल ग्रुप हमारे पास सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, जो भी नाम देना चाहे, ये सेकेंडरी प्रोपाइल भी है हमारे पास और आइसोप्रोपाइल भी है। इसी तरह जब इस ग्रुप को लेते हैं तो ये हमारे पास है टर्शरी पेंटाइल। ये हमारे पास टर्शरी पेंटाइल, क्योंकि ये कार्बन हमारे पास टर्शरी कार्बन है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आइसो अल्काइल ग्रुप हमारे पास है टर्शरी पेंटाइल, और आखिर के अंदर CO को नाम देंगे एज अ कीटोन। तो ये हमारे पास नॉमेनक्लेचर होती है, कॉमन नेम्स होते हैं कीटोन्स के, कि पहले अल्काइल ग्रुप को नाम दिया जाता है और फिर CO को नाम देते हैं एज अ कीटोन ग्रुप। नाउ द आयोपिक नेम्स ऑफ ketones. In ionic names of ketone, alkane E replaced by suffix -one. So the name are alkanone. For example, CH3CO CH3 for chain selection which contain carbonyl group. Giving numbering near to carbonyl group 1, 2, 3. Carbonyl group position 2. And 1, 2, 3 carbon we call propanone. आयोपिक नेम जब हम देंगे कीटोन्स को तो हमारे पास अल्केन का E जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ONE से, तो ये हमारे पास कहलाएंगे अल्केनोन। मतलब जो भी हम चेन सिलेक्शन करेंगे कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग, उसे हम नाम देंगे एज अ अल्केनोन। फॉर एग्जाम्पल CH3CO CH3 हमने चेन सिलेक्शन की, नंबरिंग करेंगे जहां से कार्बोनाइल ग्रुप करीब होगा, तो ये 1, 2, 3 कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन 2, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपेनोन, और इसे हम जो है वो
प्रोपेन टू ऑन भी कह सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक चेन सिलेक्शन करेंगे, नंबरिंग। अब लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप है, जबकि राइट साइड से सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। तो हम नंबरिंग के लिए जो प्रायोरिटी देंगे वो कार्बोनाइल ग्रुप को, 1 2 3 4। अब हम पहले नाम देंगे ब्रांच को, अल्काइल रेडिकल को कौन सी पोजीशन पर है, 3 पर, और क्या है, मिथाइल। तो ये नेम होगा हमारे पास 3 मिथाइल। उसके बाद सेकंड पोजीशन के ऊपर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, और 4 कार्बन की ब्रांच है, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉन। तो ये इस स्ट्रक्चर का नाम होगा 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन। उसके बाद ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, एक चेन सिलेक्शन करेंगे। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 कार्बोनाइल ग्रुप है, लेफ्ट साइड पर भी सेकंड पोजीशन पर है और राइट साइड पर भी सेकंड पोजीशन पर है। तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 3 के ऊपर एक ब्रांच है, अल्काइल रेडिकल इथाइल का, जबकि 2 और 4 पर 2 कार्बोनाइल ग्रुप है। तो फर्स्ट हम नेम देंगे इथाइल को, 3 इथाइल, और 2 और 4 2 4 पेंटेन, 5 कार्बन एंड डायऑन। डायऑन मतलब कि 2 और 4 पोजीशन पर 2 कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 2 4 पेंटेन डायऑन। इसे हम पेंटेन 2 4 डायऑन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे। आखिर में ये हमारे पास एक क्लोज स्ट्रक्चर दी गई है, जिसे हम पहले चाहिए वो क्या करेंगे, ओपन करेंगे। फर्स्ट कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, फिर हमारे पास CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप। ये हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर होगी। चेन सिलेक्शन करेंगे, नंबरिंग हमारे पास लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल की ब्रांचेज है और राइट साइड से 1 मिथाइल की ब्रांच है। मतलब लेफ्ट साइड नंबर ऑफ ब्रांचेज ज्यादा है, कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन दोनों जानिब सेम है, तो हम प्रायोरिटी देंगे नंबर ऑफ ब्रांचेस को, 1 2 3 4 5। अब पहले ब्रांचेस की पोजीशन नाम देंगे, 2 पर 2 मिथाइल, 4 पर 1 मिथाइल, तो ये हमारे पास होगा 2 2 4 ट्राई मिथाइल। फिर हमारे पास 3 पेंटेनॉन के 3 पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप और 5 कार्बन की चेन थी, तो ये हमारे पास हो जाएगा पेंटेनॉन। तो ये हमारे पास नामनक्लेचर होती है कीटोन्स की, कि एक चेन सिलेक्शन करते हैं और उसे नाम देते हैं एज अ अल्केनॉन। नाउ द नेक्स्ट फैमिली इज कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acid are those organic compounds which contain carboxyl group. Carboxyl group consists of 2 functional groups. One is carbonyl and other is OH, and collectively is called carboxyl group. So all these organic compounds which contain carboxylic acids are called carboxyl group are called carboxylic acids. वो तमाम के तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड OH या COOH। कार्बोक्साइल ग्रुप कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप पर कंसिस्ट होता है और कलेक्टिवली इसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करते हैं उन्हें कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कॉमन नेम लेते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कॉमन नेम दिया जाता है बाय देयर सोर्स के जरिए। कॉमन नेम इस तरीके से दिया जाता है कि जिस सोर्स से ये हासिल होते हैं उस सोर्स की बुनियाद पर इन्हें नाम दिया जाता है। जैसे HCOOH फार्मिक एसिड कहलाता है, ये फर्स्ट ऑब्टेन्ड हुआ था एंट्स वगैरह से
और लेटिन हमारे पास फार्मिका, तो हम इसे फार्मिक एसिड कहते हैं। इसी तरह CH3COOH को एसिटिक एसिड कहते हैं, ये ऑब्टेन्ड हुआ है, विनेगर का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और लैटिन वर्ड हमारे लिए इसके लिए एसिटम, तो ये कहलाता है एसिटिक एसिड। इसी तरह CH3CH2COOH प्रोपाइलिक एसिड कहलाता है, CH3CH2CH2COOH ब्यूटायरिक एसिड, ये भी सोर्स की बुनियाद पर। 5 कार्बन हमारे पास वैलेरिक एसिड होता है, 6 कार्बन हमारे पास कैप्रोइक एसिड होता है, और इसी तरह 16 कार्बन CH3CH214COOH ये हमारे पास कहलाता है पाल्मेटिक एसिड, एंड CH3CH216COOH ये हमारे पास कहलाता है स्टेरिक एसिड। तो ये हमारे पास कॉमन नेम्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। फिर हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम्स हम सेम अल्डिहाइड की तरह देते हैं कि पहले चाहे वो काउंटिंग करेंगे, वही फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन हमारे पास अल्फा कार्बन होगा, फिर उसके बाद बीटा और फिर गामा। पहले ब्रांचेस को नाम देंगे, अल्फा ब्रोमो और बीटा मिथाइल, तो ये हमारे पास होगा अल्फा ब्रोमो, बीटा मिथाइल, एंड 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन वाला हमारे पास है ब्यूटायरिक एसिड, तो हम इसे नाम देंगे ब्यूटायरिक एसिड। तो इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कॉमन नेम देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कॉमन नेम होते हैं वो उनकी सोर्स की बुनियाद पर है। इसी तरह ये हमारे पास दो कंपाउंड है, ये हमारे पास पाल्मेटिक एसिड और ये हमारे पास स्टेरिक एसिड। ये हमारे पास 16 कार्बन और ये हमारे पास 18 कार्बन। नाउ आयोपिक नेम्स ऑफ carboxylic acid. In carboxylic acid, iopic name alkane E replaced by oic acid. So they called alkanoic acid. आयोपिक नेम जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं तो अल्केन को रिप्लेस करते हैं ओइक एसिड से, ई की जगह पर सफिक्स ओइक एसिड ऐड होता है, तो ये हमारे पास कहलाते हैं अल्केनोइक एसिड। फॉर एग्जांपल HCOOH is called मिथेनोइक एसिड, CH3COOH called इथेनोइक एसिड, एंड तमाम के तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरीके से हम ओइक एसिड लगाकर नेम देते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसकी हम चेन सिलेक्शन करते हैं, हमेशा स्टार्ट करेंगे कार्बोक्साइल ग्रुप से क्योंकि वो कार्बन कंटेन करता है। इसी तरह नंबरिंग भी हमेशा नंबर 1 हमारे पास होगा कार्बोक्साइल ग्रुप, 1 2 3 4। अब क्या है, 3 पोजीशन पर एक ब्रांच है तो हम अल्काइल रेडिकल है, इसे पहले नाम और पोजीशन देंगे 3 मिथाइल, और हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन की चेन सिलेक्शन की है तो ये हमारे पास हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह ये हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ पर हम पोजीशन को शो नहीं करेंगे क्योंकि कार्बोक्साइल ग्रुप हमेशा नंबर 1 पोजीशन पर होगा। इसी तरह ये स्ट्रक्चर है, चेन सिलेक्शन करेंगे, स्ट्रेट करते हैं तो 1 2 3 4 आता है, लेकिन अगर हम 1 2 3 4 डाउन लेकर जाते हैं तो ये 5 कार्बन, तो ये हमारे पास चेन सिलेक्शन होगी। नंबरिंग वही हम करेंगे कार्बोक्साइल ग्रुप से, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मिथाइल। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 और 3 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल, और हमने जो चेन सिलेक्शन की है वो 5 कार्बन, तो ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को नेम देंगे। उसके बाद आते हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें 2 कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद है। फर्स्ट से चेन स्टार्ट करेंगे और सेकंड पर एंड। अब देखिए यहाँ पर कोई ब्रांच मौजूद नहीं है तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 कार्बन की चेन है और इसमें 2 चेन कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद है, तो हम इसे नाम देंगे एज अ हेक्सेन डाई
ओइक एसिड, हेक्सेन 6 कार्बन, डाइओइक एसिड मतलब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास नेम होते हैं जिनके तहत हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आयोपेक नेम देते हैं। अब हमारे पास ये दो जो हायर नंबर कार्बन के हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, कॉमनली ये पाल्मेटिक और ये हमारे पास स्टेरिक। अब यहाँ पर टोटल 16 कार्बन मौजूद है, तो 16 कार्बन हमारे पास हेक्साडेकेन कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास कहलाएगा हेक्साडेकेनोइक एसिड। और इसी तरह ये हमारे पास 18 कार्बन का है, 18 कार्बन हमारे पास कहलाते हैं ऑक्टाडेकेन। तो यहाँ पर ये हमारे पास कहलाएगा ऑक्टाडेकेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम आयोपेक नेम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। एक चेन सिलेक्शन करेंगे जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप लाजमी होगा, नंबरिंग कार्बोक्सिल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और हम चेन को जो नाम देंगे वो एज अल्केनोइक एसिड। नेक्स्ट फैमिली हमारे पास ईस्टर। ईस्टर आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन substitute by alkyl group. So these compound form are called ester. C double bond O OR or C double O R group is called ester group. ईस्टर हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है अल्काइल ग्रुप से। तो ये कंपाउंड हमारे पास कहलाते हैं ईस्टर। सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये हमारे पास ईस्टर। ये जो सी डबल ओ आर ग्रुप ये हमारे पास कहलाता है ईस्टर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाय इथाइल ग्रुप. In place of hydrogen, the ethyl group attain. So this is example of ester family. नेमिंग के अंदर हम क्या करते कि पहले हम नाम देते कि ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर जो अल्काइल ग्रुप आए पहले उसे नाम देते हैं, और फिर हम सेकंड जो पार्ट है हमारे पास उसे हम ईस्टर कंसीडर करते हैं और उसे नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कॉमन नेम में भी, आयोपेक नेम भी। फर्स्ट हम अल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं जो हमारे पास आता है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर, और सेकंड फिर हम नाम देते हैं बाकी पार्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड के जरिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एसिड रिमूव कर रिप्लेस कर उसकी जगह पर लगा देते हैं सफिक्स ATE। कॉमन नेम में भी, आयोपेक नेम में भी। मिसाल के तौर पर फार्मिक एसिड से फार्मेट, एसिटिक एसिड से एसीटेट, प्रोपाइनिक एसिड से प्रोपाइनेट। इसी तरह अगर आयोपेक नेम के अंदर लेते हैं तो मिथेन से मिथेनोएट, मिथेनोइक एसिड से मिथेनोएट, इथेनोइक एसिड से इथेनोएट। इस तरीके से हम उन्हें नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास CH3COOC2H5 है। अब पहले हम इस इथाइल ग्रुप को नाम देते हैं इथाइल, और ये हमारे पास 2 कार्बन वाला हमारे पास कहलाता है एसिटिक एसिड, यहाँ कहलाएगा एसीटेट। तो हम इसे नाम देंगे एज इथाइल एसीटेट। ये नाम जब हम आयोपेक सिस्टम के अंदर देते हैं तो अल्काइल ग्रुप का नेम हमारे पास सेम होगा इथाइल ग्रुप, लेकिन ये जो हमने COOCH3 ग्रुप है ये आयोपेक सिस्टम में अगर होता तो इथेनोइक एसिड कहलाता, तो हम इसे नाम देते हैं एज इथेनोएट। इसी तरह ये हमारे पास एक एग्जाम्पल और है कि ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप है ये हमारे पास सेकेंडरी प्रोपाइल, हम इसे आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं। तो हम इसे आइसो और सेकेंडरी प्रोपाइल, और फिर ये हमारे पास 1 2 3 कार्बन की जो है वो मतलब ईस्टर ग्रुप है, तो हम इसे प्रोपाइनिक एसिड से नाम देंगे प्रोपाइनेट। तो ये हमारे पास इसका कॉमन नेम होगा। आयोपेक नेम देंगे तो आयोपेक नेम में अल्काइल ग्रुप का नेम सेम होगा, सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। जबकि जब हम आयोपेक नेम ईस्टर को देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोपेनोएट। तो इस तरीके से हम जो है वो ईस्टर्स को नेम देते हैं
कि अल्काइल ग्रुप का नेम कॉमन नेम के अंदर आयोपेक सिस्टम में सेम होता है तकरीबन, जबकि हम हमारे पास जो आयोपेक सिस्टम में ईस्टर को नेम देते हैं, चेन को नेम देते हैं, पेरेंट चेन को, वो सिर्फ हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एसिड रिमूव करके उसकी जगह पर हम ऐड कर देते हैं ATE, चाहे वो कॉमन नेम से दें या हम आयोपेक नेम से दें। तो बेटे ये हमारे पास नॉमेनक्लेचर थी चैप्टर नंबर 9 के अंदर ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हमने वन बाय वन तमाम की तमाम फैमिलीज को जो वो डिस्कस किया कॉमन नेम में, आयोपेक नेम्स के अंदर, और उनके रूल्स लिए। इसके लिए कोई भी बेटा क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स के अंदर मालूम कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।